No, sir. If you have, you can ask me. Okay, कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो you can ask me. Okay, ठीक है. तो आगे बढ़ते हैं. We will go for the next topics. So last time we have did we have discussed about what how we work out with if else if like conditioning. And sorry for that, guys. I was like I forget to send you the questions on the conditioning. So today you have a questions, right? I have given you the questions on the conditioning. So try to work out on that. Try to solve those questions. You can do it, guys. Okay? आप वो सारे प्रॉब्लम बहुत इजीली जो है वो कर पाओगे. ठीक है. यू विल नॉट हैव एनी इश्यूज इन की कंडीशनिंग क्या होता है, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट क्या होता है. सो यू डोंट हैव दैट काइंड ऑफ इश्यूज इन दैट, मुझे पता है, बिकॉज व्हाट वी हैव सीन इन जावा द सेम थिंग विल बी रिपीटेड हियर एज वेल. जितने भी चीजें हमने जावा में देखी है वो सेम चीजें यहाँ पे रिपीट हो गई. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे, ओके, व्हाट इज द थिंग वी हैव टू डिस्कस. तो हमने लास्ट टाइम क्या क्या डिस्कस किया था. वी हैव डिस्कस व्हाट इफ, राइट. वी हैव डिस्कस इफ, राइट गाइस, समझ में आ रहा है. We have discussed if. Then we have seen if and else. Yes, everyone. समझ में आ रहा है? Guys, are you getting Sir. this? Okay, so we have seen if. We have seen if else. And we have another thing which is called as if else if. So in the end, what we are doing, okay? What we are discussing what conditional statement. We are discussing conditional statement and decision making statement क्या होते हैं कि अगर if you wanted to make a particular decision, एक डिसीजन के ऊपर एक पर्टिकुलर जो लाइन है वो एग्जीक्यूट होना चाहिए. सपोज हमारा कोई ब्लॉक है, so we wanted to add some condition over that. That could be anything. Suppose age is greater than equal to 18, then it is eligible for voting. Otherwise, it is not eligible. So same thing. अगर आपको किसी भी लाइन ऑफ कोड के ऊपर एक डिसीजन डालना है कि अगर ऐसा होता है तो ये लाइन एग्जीक्यूट होनी चाहिए, अगर ऐसा नहीं होता तो ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होनी चाहिए. So this is called as a decisional statement. And let's go. We'll try to proceed for the further entities. So what we are discussing, we are discussing what conditional statement. Okay. So conditioning statements. Okay, guys. So in conditional statement, what we have seen if, right? Then we have seen if else, right? Then we have a if. Okay, in conditional statement we have a if, we have a if else, and we have a if else if, right? समझ में आ रहा है. सेम चीज हमने देखी है. अच्छा, if कब यूज करते हैं, कैन यू टेल मी गाइस, व्हेन वी आर गोइंग टू यूज दिस if कब यूज करते हैं. यस, हम कब इफ जो है वो यूज करते हैं. व्हेन वी वांटेड टू चेक ओनली वन कंडीशन, जब भी हमें ओनली वन कंडीशन जो है वो चेक करना है. समझ में आ रहा है. इफ यू वांटेड टू चेक ओनली वन कंडीशन देन यू आर गोइंग टू यूज इफ और इफ एल्स. समझ में आ रहा है. अगर आपको ओनली वन कंडीशन जो वो चेक करना है देन इन दैट कंडीशन यू आर गोइंग टू यूज इफ एंड इफ एल्स. बट इफ आई वांटेड टू गो फॉर चेकिंग मल्टीपल कंडीशन, अगर मुझे मल्टीपल कंडीशंस जो है चेक करना है. समझ में आ रहा है guys, are you getting this? If I wanted to check a multiple conditions, okay, multiple checks or we can say conditions. If I wanted to go for multiple conditions, okay, if I wanted to check a multiple conditions, in that case we are going to use if else if. समझ में आ रहा है guys, are you getting this? So if else if is used for to check a multiple condition. समझ में आ रहा है. आप कब if else if ये यूज करोगे when you wanted to check a multiple conditions. Are you getting this guys? Yes, समझ में आ रहा है. Yes guys. Okay, so if else if used for, yes guys, if else if Multiple used conditions. to check a multiple conditions, right? So suppose I wanted to I will write example. Okay, suppose I wanted to check whether the number, whatever the number you have, suppose you have a number, okay, this number you have to check whether this number is positive, whether this number is negative, whether this number is zero. Are you getting this guys? You wanted to check whether this number is positive, whether this number is negative or zero. Are you getting this? So can we say this kind of problem comes in multiple conditions? Yes, can we say that guys?
कि आपको इस प्रॉब्लम में अगर आपको नंबर जो है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है, अगर आपको ये चेक करना है तो यहाँ पे हमें मल्टीपल कंडीशंस जो वो चेक करना पड़ रहा है। आर यू गेटिंग दिस गाइस? क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि वी हैव टू गो एंड चेक मल्टीपल कंडीशंस हियर? समझ में आ रहा है? यस एवरीवन, आर यू गेटिंग दिस? सो कैन वी से Yes. वी हैव टू चेक मल्टीपल कंडीशंस? तो अगर हमें मल्टीपल कंडीशंस जो है वो चेक करना है, सो इन दैट केस वी आर गोइंग टू यूज अ इफ एल्स इफ। ओके, सो हाउ वी आर गोइंग टू चेक, हाउ वी राइट इफ एल्स इफ? सबसे पहले देखना, पाइथन में ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस ये नहीं होता। इन पाइथन यू डोंट हैव ओपनिंग ब्रेस एंड क्लोजिंग ब्रेसेस। ओके, यू हैव अ इंडेंटेशन। आपके पास में इंडेंटेशन होता है। सपोज आई हैव अ नंबर, सो आई विल राइट व्हाट नंबर? सपोज आई हैव अ नंबर एंड आई विल राइट नंबर इज इक्वल टू, लेट्स टेक आई विल राइट 10। ओके, सबसे पहले मैं लिखता हूँ आई विल राइट इफ। ओके, सो आई विल राइट इफ नंबर, okay, what is the number I have? If number is greater than 0, so what it will be guys, you have to write a colon here and inside this you will get some indentation. ये होता है indentation. Okay, so it is called as indentation. Okay, indent, it is called as indent. Okay, ये indent क्या करता है? ये indent आपको बताता है कि ये जो आप लाइन ऑफ कोड लिख रहे हो ये किसका पार्ट है, किस ब्लॉक का पार्ट है, ये आपका एक इंडेंटेशन बताता है। सो मुझे बताइए, अगर एक नंबर जो है वो ग्रेटर देन 0 होता है तो वो क्या होगा? यस, अगर कोई नंबर, सपोज आई विल राइट, अगर नंबर जो है वो ग्रेटर देन 0 होता है तो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। यस गाइस, एवरीवन, Yes. पॉजिटिव होता है। सो अगर एक Yes, नंबर sir. ग्रेटर देन क्या होता है? 0 होता है। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं? आई विल राइट प्रिंट, ओके, इन डबल कोट पॉजिटिव। ओके, वेरी इजी टू वर्क आउट। बट अगर ये पॉजिटिव नहीं होता है तो आई हैव टू चेक अनदर थिंग। सो यहाँ पे देखना, यहाँ पे इंडेंटेशन होता है। तो ये जो दिख रहा है ना, सपोज आई विल राइट ये यहाँ से, ये जो स्टेटमेंट है इस पे फोकस करना। ये जिस लाइन में है, सपोज दिस इज द लाइन, ओके, ये लाइन है, और यहाँ से स्क्रीन से जितना लाइन यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आपको एक लाइन दिखेगा, यू विल गेट वन लाइन। तो ये जो रेड में दिख रहा है ना, यहाँ से, ये यहाँ से और यहाँ तक जो आपको डिस्टेंस दिख रहा है, सपोज आई विल राइट दिस, ये जो डिस्टेंस है ये होता है आपका इंडेंटेशन। तो ये जो प्रिंट स्टेटमेंट दिख रहा है ये आपको एक इंडेंटेशन के साथ दिख रहा है, यानी एक डिस्टेंस है। कहाँ से? ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है यहाँ से, ये जो प्रिंट स्टेटमेंट आपको दिख रहा है यहाँ पे, क्या समझो कि ये इसका पार्ट है यहाँ पे, और ये जो लाइन दिख रहा है आपको, सपोज लेट्स टेक दिस मार्जिन, ये जो मार्जिन है, ओके, दिस इज अ मार्जिन, सो दिस मार्जिन इज व्हाट? दिस योर इंडेंटेशन। ये जो प्रिंट बता रहा है कि ये किसका पार्ट है, यानी इंडेंटेशन बताते हैं किसका पार्ट है, इसलिए मैंने इसके अंदर लिखा है। देन आई विल गो फॉर राइटिंग अनदर थिंग। मैं दूसरी कंडीशन लगाता हूँ, आई विल गो एंड राइट अनदर कंडीशन। तो यहाँ पे मैं आई विल कम बैक हियर फ्रॉम दिस, यहाँ पे देखना मैं फिर से वापस आऊंगा इस इफ के नीचे, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो यहाँ पे ये इंडेंटेशन दिखाता है कि वो उसके अंदर का पार्ट है। तो जो एल्स है, मैं जो इफ के अंदर नहीं लिखना है, आई वांटेड टू राइट आउटसाइड, मुझे दूसरा ब्लॉक लिखना है, तो फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ एल, सॉरी, else if. So we here in Java we have a else if, but यहाँ पे लिखना पड़ता है elif. Okay, so we have a else. Let's write, for writing we are using this else if. Okay, else if, inside this I will again open another condition. So I will write if number, okay, so if number is less than 0, so what it will be guys? Again I will hit colon. Now focus on my writing. Again I will hit colon. कॉलन हिट करने के बाद आपको फिर से एक इंडेंटेशन मिलेगा। यू विल अगेन गेट फ्रॉम दिस, सपोज लेट्स टेक, आई विल जस्ट राइट कि यहाँ से मुझे एक इंडेंटेशन मिल रहा है, आई विल टेक दिस रेफरेंस, ओके, आई एम गेटिंग द इंडेंटेशन हियर, ओके, सो इट मींस that whatever we are going to write inside this if else we are getting some indentation. ये इंडेंट क्या बताएगा? ये इंडेंट बताएगा कि कौन सा लाइन ऑफ कोड किसका पार्ट है, तो ये इंडेंट बताएगा। तो सपोज मैं यहाँ पे बताता हूँ, ये मेरा जो इंडेंट है, ओके, दिस इज माय इंडेंट। तो इसके बाद मैं लिखता हूँ अगर नंबर इज लेस देन 0 है, सो आई विल राइट प्रिंट नेगेटिव, राइट, सो इट विल बी नेगेटिव, सो आई विल राइट इन डबल कोट, आई विल राइट इट इज अ नेगेटिव। Fine, very easy. Then we will go for the next one. Okay, so we have written if else. Again I will go for next one. So I will not going to write the else here. मैं इसके अंदर else जो है वो नहीं लिखूंगा। I will not going to write the else here. अगर अगर आप else इसके अंदर लिखते हो, ध्यान देना, अगर आप else जो है इसके अंदर लिखते हो, इसका मतलब क्या है? ये else जो है ना, आपने क्या किया, आपने ये else, ये बाहर वाली जो एल्स इफ दिख रहा है इसका पार्ट बना दिया, बिकॉज आपने ये एक इंडेंटेशन के अंदर लिखा है, इसलिए ये हमें नहीं लिखना है। व्हाट आई वांटेड टू, मुझे ये एक सेपरेट ब्लॉक है, जो ये एल्स होगा, सपोज हमने एक इफ लगाया, एल्स इफ लगाया, अब जो नया एल्स आएगा वो इसके अंदर नहीं आएगा, मुझे बाहर एक सेपरेट पार्ट लगाना है इसको,
ये जो एल्स होगा। तो अगेन आई विल गो फॉर दिस, ये लाइन पे हम रिटर्न आते हैं, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एल्स। अगर ऐसा नहीं होता है, पॉजिटिव भी नहीं होता है, नेगेटिव भी नहीं होता है, तो आई विल राइट हियर एल्स एंड आई विल सिंपली राइट प्रिंट 0। अगर कोई भी नंबर पॉजिटिव नहीं होता है, नेगेटिव भी नहीं होता है, तो इट विल बी 0। सो दैट इज हाउ वी हैव टू राइट दिस थिंग। Okay, and here we don't have to put the semicolon. So it is how your if else if condition is look like. So we are going to write if. Okay, so we are going to check this positive है या फिर नेगेटिव है। okay, दो कंडीशन हमने लगाई है, मोर देन वन कंडीशन है, इसीलिए मोर देन वन कंडीशन के लिए जब भी हम यूज करते हैं वी आर गोइंग टू यूज इफ एल्स। तो यहाँ पे मैंने इफ लगाया है, उसके बाद मैं यहाँ पे एल्स इफ लगाया है, फिर यहाँ पे मैंने एल्स लगाया है। सो इट इज हाउ दिस कोड इज गोइंग टू वर्कआउट एंड लुक्स लाइक। लेट्स गो। अगर आपको यहाँ पे नहीं समझा है कि किस तरह से आ रहा है, हाउ दिस कोड इज गोइंग टू वर्कआउट, या फिर ये इफ एल्स इफ होता क्या है, इसको कोड करके देखते हैं। Let's go guys, we will try to code it, and with the code you will get more understanding about this indentation thing and how we write if else if. Okay, so today we are going to discuss if else like condition statements and some looping statement part as well. You will get stuck, आप stuck हो सकते हो, आपका error आ सकता है indentation में। Okay, you will get the errors in indentation because initially you have to struggle with this thing, guys। आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते ये चीजें आएगी कि हो सकता है कि आपको बोलते हैं इंडेंटेशन एरर, इसलिए मैं इंडेंटेशन पे इतना आपको फोकस या फिर इंफोसाइज करके एक्सप्लेन करवा रहा हूँ कि इंडेंटेशन होता क्या है। ओके, ताकि जो ओपनिंग क्लोजिंग जो होता है उसमें पता होता है कि अगर ओपनिंग और क्लोजिंग के अंदर जो पार्ट लिख रहे हो वो उस ब्लॉक का पार्ट है, बट पाइथन में जो ओपनिंग क्लोजिंग नहीं होता है, इसलिए हम इसको सिंपल रखने के लिए मैं आपको बहुत सारी चीजें जो है इंडेंटेशन के बारे में बता रहा हूँ। अगर आपने इंडेंटेशन मिसमैच कर दिया तो हो सकता है आपका एरर आ जाए, हो नहीं सकता, होगा होगा कि आपका एरर आ जाएगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडेंटेशन सही से कैसे लिख सकते हैं, बिगिनिंग स्टेज में आप इंडेंटेशन से कैसे डील करोगे। ओके, सो वी आर गोइंग टू राइट द सेम लाइन ऑफ कोड हियर। इफ ऐसे वर्कआउट करते हैं देन वी आर गोइंग टू राइट नेस्टेड इफ एंड देन मैच केस। सेम जैसे हमने देखा इफ एल्स, like in condition statement we have a if, we have a if else, we have a if else if, and we have a, in Java we have a switch, right? So in Python we don't have a switch, we have a match case. Same as the switch is working here, you match case the work as the same, no difference. एंड गाइस प्लीज जल्दी ज्वाइन किया करो, ये टाइम आप कितना लेट हो गए हो, 6 कितना हो गया है टाइम, व्हाट इज टाइम नाउ, आप इतना लेट मत ज्वाइन करो, मैं नेक्स्ट टाइम से आपको बिल्कुल अलो करूंगा नहीं। यू आर लाइक अटेंडिंग द सेशन वेरी लेट, 6 का टाइम है हमारा। ओके, ध्यान में रखना आपका टाइम क्या, आप बहुत लेट ज्वाइन कर रहे हो। इट यू दिस काइंड ऑफ बिहेवियर फ्रॉम योर साइड इट विल डिस्ट्रैक्ट माय फ्लो, मेरा फ्लो जो है वो खत्म करता है ये ऐसी चीजें। जल्दी ज्वाइन किया करो, नहीं तो मैं नेक्स्ट टाइम से बिल्कुल आपको अलो ही नहीं करूंगा। 6 का टाइम है आपका, ओके, फ्रॉम रेगुलर। अभी तक जो चल रहा था वो ठीक है, बट 6 का टाइम है। 6 से बाद में अगर कोई ज्वाइन करता है, हाँ चलो 1-2 मिनट लेट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बीच में ज्वाइन कर रहे हो, 6:20 हो गया है अभी, नेक्स्ट टाइम से मैं अलो नहीं करूंगा बिल्कुल आपको। एक जो फ्लो होता है पढ़ाने का, बार बार ज्वाइन करके वहां पे मुझे अलो करने के लिए जाना पड़ता है। नेक्स्ट टाइम प्लीज ट्राई टू ज्वाइन ऑन द टाइम। Okay, let's proceed. So we will try to understand this, how this if else if or the other indentation part is work. I'm telling you and this explaining you this and I'm emphasizing on this indentation. Why I'm like giving so much attention on this, because initially you will get so much error. Okay, that's why. So I will write if, I will write some, I will write take some number. Okay, I will take some number, let's take number is equal to anything. Okay, I will write number is equal to 10. Okay, fine. So number is equal to 10. So I will write if. Okay, I will write if and open the parenthesis. Fine. So inside this, if I will write if number is greater than 0. मुझे पता है अगर number जो है वो greater than जो है वो 0 होता है. Okay, अगर number, if number, okay, and my PC is getting slow right now. Okay, so I will write if number is greater than 0. मुझे पता है अगर number जो है greater than 0 होता है तो ये पॉजिटिव होता है। I will write colon and hit enter। जैसा ही आप एंटर करोगे, द पॉइंट व्हेन यू हिट एंटर, आप एक इंडेंटेशन के अंदर आ जाओगे, यू विल गेट सम इंडेंटेशन। एंड नाउ हाउ इट लुक लाइक, फोकस हियर। ओके गाइस,
तो आपको ये जो दिख रहा है ना, जैसे ही आप एक कोलन लगा के हिट एंटर करते हो, जैसे मैंने यहाँ पे कोलन लगाया, एंटर किया, तो आपको एक कर्सर दिख रहा होगा। सपोज यहाँ पे आपको कर्सर ब्लिंक होता हुआ दिखेगा, और यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ, आई विल जस्ट प्रिंट, ओके प्रिंट, आई विल राइट पॉजिटिव। इंडेंटेशन पे फोकस करना है, ठीक है, आई विल राइट पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, थोड़ा फोकस करना। यहाँ से जो मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ से ये जो स्क्रीन है, यहाँ से यहाँ तक जो आपको डिस्टेंस दिख रहा है, द डिस्टेंस यू आर गेटिंग फ्रॉम दिस इज कॉल्ड एज इंडेंटेशन, ओके। So this is your indentation. It is called as an indentation. Okay. So it is called as indentation. It is called as your indent. तो इंडेंट करता क्या है, आपको इंडेंट बताता है कि कौन सा ब्लॉक किसका पार्ट है। अब यहाँ पे मुझे सपोज आई विल, ये इंडेंट मुझे मिल रहा है x, तो मुझे पता है कि ये जो यहाँ पे लिख रखा है ये लाइन, मुझे पता है ये लाइन किसका पार्ट है, ये इस इफ का पार्ट है। क्यों? क्योंकि ये इंडेंट मुझे बताता है कि कौन सा ब्लॉक किसका पार्ट है। तो सबसे पहले मैंने लिखा है इफ, ओके, सो आई हैव रिटन इफ। अब आगे बढ़ते हैं, वी आर गोइंग टू वर्क आउट विद द अनदर स्टेटमेंट। सो मैं जो इसके बाद में जो एल्स लिखूंगा, आई विल स्टार्ट राइटिंग माय नेक्स्ट लाइन फ्रॉम हियर, ठीक है। ध्यान देना मैंने क्या किया, यहाँ पे मुझे इंडेंट दिख रहा है, आई एम गेटिंग माय इंडेंट हियर। अब जो नेक्स्ट लाइन लिखूंगा मैं, वो नेक्स्ट लाइन मैं कहाँ से स्टार्ट करूंगा, आई विल स्टार्ट माय नेक्स्ट लाइन फ्रॉम दिस, जहां से मैंने ये लाइन स्टार्ट किया था, उसी लाइन को स्टार्ट रेफरेंस पकड़ के मैं नेक्स्ट लाइन लिखूंगा। तो यहाँ से जो ये लाइन दिख रहा है, ध्यान देना, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया, मैं सेम यहाँ पे आऊंगा, आई विल कम हियर एंड आई विल राइट माय अनदर स्टेटमेंट। सो आई विल गो हियर एंड हियर, देखना मेरा कर्सर कहाँ से स्टार्ट किया है, क्योंकि ये नया ब्लॉक है। सो आई विल राइट एल, ओके, आई विल राइट एलिफ, ओके, इट इज एलिफ। सी मैंने कहा से नया ब्लॉक जो स्टार्ट किया, देन आई विल राइट पैरेंथेसिस, आई विल राइट अगर नंबर ये लेस देन 0 होता है, अगेन आई विल हिट कोलन एंड हिट एंटर। जैसे ही एंटर करोगे आपको फिर से एक बार जो है वो एक इंडेंटेशन नया देखने को मिलेगा, बिकॉज ये इंडेंटेशन बताएगा कि कौन सा किसका पार्ट है। अब यहाँ से आपको यहाँ तक इंडेंटेशन मिलेगा, देखो दोनों का इंडेंटेशन सेम ही मिलता है, ये इंडेंटेशन आपको सेम ही मिलेगा, जैसे ऊपर मिला वहां पे यहाँ पे भी इंडेंटेशन मिलेगा। अब यहाँ पे जैसे मैं हिट एंटर करता हूँ, देखना हमारा कर्सर कहाँ पे खड़ा अभी ब्लिंक कर रहा है, वो है इंडेंटेशन। यहाँ पे मैं फिर से लिखता हूँ प्रिंट, एंड इट इज अ नेगेटिव, आई नो इट इज अ नेगेटिव, सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन नेगेटिव। अब फिर से मैं जाता हूँ वही मेरे न्यू लाइन के ऊपर, जहाँ से मेरा नया ब्लॉक जो स्टार्ट होगा, तो मैंने यहाँ से एक नया मेरा ब्लॉक स्टार्ट होने वाला है। तो इसीलिए मैंने एक कर्सर जो है वो इनिशियल लाइन पे लेके आया, क्योंकि मुझे वहीं से हमारा नया ब्लॉक स्टार्ट करना पड़ता है। फिर से एंटर करता हूँ एंड आई विल हिट बैक स्पेस, तो आप उसी नए ब्लॉक के स्टेज में आ जाओगे, या फिर नया लाइन जहां से स्टार्ट होता है वहां पे आ जाओगे। देन आई विल राइट अगर इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0 इट इज पॉजिटिव, अगर लेस देन 0 नेगेटिव। बट अगर ऐसा नहीं होता है तो आई विल राइट एल्स कोलन एंड हिट एंटर। नाउ यू कैन अगेन सी इंडेंटेशन, आई विल राइट प्रिंट 0। तो अगर ये पॉजिटिव होता है तो, अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो पॉजिटिव है, लेस देन 0 होता है तो नेगेटिव है, एंड अगर पॉजिटिव भी नहीं होता है नेगेटिव भी नहीं होता है, तो वो ब्लॉक जो है वो 0 होगा। इतना समझ में आया गाइस, हाउ दिस इंडेंटेशन इज लुक लाइक एंड हाउ यू हैव टू डील विद दिस इंडेंटेशन? इतना समझ में आया? बताइए, इतना समझ में आया कि इंडेंटेशन किस तरह से होता है और आपको लाइंस किस तरह से स्टार्ट करना है? इतना समझ में आया? यस सर। यस गाइस, ओके टेल मी, ये जो कंडीशन है, यू कैन सी दिस कंडीशन, इज इट ट्रू और फॉल्स? क्या ट्रू है? यस गाइस, क्या नंबर इज ग्रेटर देन 0? यस एवरीवन गाइस, ट्रू। क्या नंबर इज ग्रेटर देन 0? ट्रू है? ट्रू और फॉल्स? इट इज ट्रू, राइट? Because our number is 10 and it is a greater than 0. Yeah, so what will the output, हमारा इसका आउटपुट क्या आएगा? What is the output of this code? आउटपुट क्या आएगा इसका? Yes guys, what will the output? इसका आउटपुट क्या आएगा? पॉजिटिव, राइट? यू विल गेट पॉजिटिव ना? समझ में आ रहा है एवरीवन? यस सर। यस, ओके, इफ आई विल राइट नंबर इज 0, मुझे बताओ इस लाइन पे आएगा, क्या ये कंडीशन ट्रू है? क्या जो इफ फर्स्ट वाला इफ जो कंडीशन है, क्या ये ट्रू है? बताइए, इज इट ट्रू गाइस? जो फर्स्ट इफ का ब्लॉक है ये वाला, क्या है ट्रू है? इज इट ट्रू? बताइए, रिस्पॉन्स करो। यस गाइस, इज इट ट्रू? फर्स्ट, क्या नंबर इज ग्रेटर देन 0? बताओ मुझे, ये क्या है ब्लॉक ट्रू है? नो सर। नहीं है, ये हो गया फॉल्स। जैसा ये फॉल्स हो तो ये यहाँ से इस लाइन पे आया, बराबर। बताओ, क्या ये ब्लॉक ट्रू है? यस सर। नंबर इज लेस देन 0 नहीं है, नहीं अलग नहीं। होता है। 0 इज नॉट लेस देन 0, 0 इज 0। जो हमारा नंबर लाइन होता है, सपोज वी हैव अ नंबर लाइन, यहाँ पे हमारा 0 होता है, राइट? यहाँ पे सारी नेगेटिव वैल्यूज होती है और यहाँ पे सारी पॉजिटिव वैल्यूज होती है।
समझ में आ रहा है? तो ये नंबर जो जीरो है वो लेस देन जीरो नहीं है, जीरो जीरो है वो इक्वल टू जीरो है। समझ में आ रही है ये बात गाइस? तो सेकंड yes sir, है आपका ट्रू नहीं है, ये भी ट्रू नहीं है, बिकॉज नंबर इज नॉट लेस देन जीरो, ये ट्रू नहीं है, यहाँ पे फॉल्स हो गया। फिर से यहाँ पे आया, क्या नंबर अगर नंबर ट्रू भी नहीं, अगर नंबर पॉजिटिव भी नहीं है नेगेटिव भी नहीं है तो क्या होने वाला है? जीरो होगा। कैन वी से कि अगर नंबर पॉजिटिव भी नहीं है नेगेटिव भी नहीं है तो क्या बोल सकते हैं वो जीरो है गाइस? यस, Yes, sir. yes, right. So it is how it look like, it is how your condition statement will work out, it is how your if else will work out, right? So it is how we write if else condition. Same way, let's go and let's try to write some code, more code. So I will write, I want to check whether the number is even or odd. Okay, so it will come under the if else, sorry, not if else, it will come under the if else statement. So I will again write, I will take now one number, let's take 10. So I will write here, I will write, मुझे पता है अगर नंबर ग्रेटर देन, अगर नंबर जो है वो मॉडुलर टू इक्वल टू जीरो होता है, अगर कोई भी नंबर अगर उसका मॉड निकालते हो, बॉन्ड मॉड है ना, रिमाइंडर इक्वल टू जीरो होता है तो ये इवन होगा, आई विल राइट दिस इवन। बट अगर ऐसा नहीं होता है, राइट, तो ये ऑड होगा। सो आई डोंट हैव टू राइट दिस कंडीशन एल्स इफ, आई विल जस्ट रिमूव दिस सिंपल, आई विल नॉट राइट दिस। व्हाट आई विल राइट, अगर नंबर मॉडुलर टू इक्वल टू जीरो होता है तो ये इवन है, बट अगर ऐसा नहीं है तो ये ऑड है। सो आई डोंट हैव टू राइट अदर कंडीशंस। समझ में आ रहा है गाइस? आर यू गेटिंग दिस? यस एवरीवन, समझ में आ रहा है? Yes, sir. yes sir, बहुत ईजी है ये, बहुत ईजी, आपको समझ, आपको पता है कि आप बहुत ही इसमें प्रैक्टिस हमने की है, जैसे हमने स्टार प्रिंटिंग पैटर्न्स किए हैं, ये भी सारी चीजें हमने हमें इसमें भी करना है। तो इस तरह से हम इफ एल्स इफ, या फिर हमने देखा इफ, देन वी हैव सीन इफ एल्स, देन वी हैव सीन इफ एल्स इफ। ओके, एंड द नेक्स्ट कंडीशन स्टेटमेंट विल बी, आई थिंक जो इफ एल्स इफ है ये हमने लास्ट टाइम ही देखा था, राइट? वी हैव सीन दिस हाउ दिस इफ एल्स इफ इज वर्कआउट। ओके, एंड इसलिए मैंने आपको इंडेंटेशन के लिए, इंडेंटेशन में प्रॉब्लम आता है इसलिए मैंने आपको एक और बार जो है बताया एक्सप्लेन करके। अब आते हैं नेक्स्ट में नेस्टेड इफ, राइट? नेस्टेड इफ, यस गाइस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस नेस्टेड? एक नेस्टेड स्ट्रक्चर क्या होता है? व्हाट इज द मीन ऑफ नेस्टेड? क्या होता है नेस्टेड? यस गाइस, व्हाट इज नेस्टेड? नेस्टेड का मतलब क्या होता है? हेलो गाइस, एम ऑडिबल ना? यस, बताइए नेस्टेड का मतलब क्या होता है? मेरा साउंड आ रहा है आप सबको? यस भी नहीं, नो भी नहीं, कुछ बोलना ही नहीं है। यस सर। एक नेस्टेड स्ट्रक्चर क्या होता है? क्या होता है नेस्टेड? जैसे आपने अनियन देखा है, आपने कभी अनियन को पील किया है? यस गाइस, अनियन को पील किया, अनियन का कैसा रहता है? एक सबसे पहले एक राउंड होता है ना बाहर, समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस? सबसे पहले एक राउंड होता है, राइट? उसके अंदर और एक राउंड होता है, समझ में आ रहा है? सो इट इज लुक लाइक दिस ना, एक अनियन जो है आपको इस तरह से दिखता है, समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं नेस्टेड स्ट्रक्चर। व्हाट इज कॉल्ड? इट इज कॉल्ड एज अ नेस्टेड स्ट्रक्चर। समझ में आ रहा है क्या गाइस? आर यू गेटिंग दिस? इट इज कॉल्ड एज अ नेस्टेड स्ट्रक्चर। नेस्टेड स्ट्रक्चर क्या होता है? जो एक के अंदर एक होता है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज यू हैव ए वन बॉक्स, and inside this box you have another box, inside this box you have another box, inside this you are creating a nested structure. So this one inside another, जो एक के अंदर एक जो होता है ना, one inside another, समझ में आ रहा है गाइस? आर यू गेटिंग दिस? व्हाट इज माय नेस्टेड? यस सर। yes sir, Yes, so it is called as a nested. Okay, and when we talk about nested if, so what will happen? Okay, suppose you have one if, so it is your if, and inside this you have another next if, and inside this you have another next if. समझ में आ रहा है? Yes guys, are you getting this? प्लीज बताइए, समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं फिर से बताऊं। Yes, sir. समझ में आ रहा है? तो ये होता है आपका नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ में हमेशा ध्यान में रखना, ओके, ये अंदर वाला इफ, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत फोकस करना है यहाँ पे। ये अंदर वाला इफ एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा, ओके, समझ में आ रहा है? द जो अंदर वाला इफ है, ओके, जो अंदर वाला इफ है वो बाहर वाली इफ के ऊपर डिपेंड करेगा। समझ में आ रहा है कि वो एग्जीक्यूट होता है या नहीं होता है? सपोज आई हैव वन इफ स्टेटमेंट, ओके, इट हैज सम कंडीशन,
Okay, it has some conditions. We know if statement has some conditions, right? So I will write inside this if, I will write some indentation, and inside this I will write another if. So it will again have some conditions. ये समझना, ये जो है ना, ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड नेस्टेड इफ. ठीक है, थोड़ा न्यू पेज लेते हैं. विल ट्राई टू सी हाउ नेस्टेड स्ट्रक्चर वर्क. ओके, हाउ योर नेस्टेड स्ट्रक्चर विल वर्क. ये कैसे कैसे काम करता है, कैसे एग्जीक्यूट होता है. बहुत ध्यान में देना, ध्यान देना. अगर आपको ये समझ जाएगा तो आगे वाली चीजें आपको समझ में आ जाएगी. तो मैं सबसे पहले एक इफ लिखता हूँ, और इस इफ में कंडीशन होती है. हमें पता है कि एवरी इफ कंडीशन, एवरी इफ स्टेटमेंट हैज सम कंडीशन, राइट? इट हैज सम कंडीशंस. आई विल राइट हिट कोलन, और यहाँ पे मैं एक इंडेंटेशन लगा देता हूँ. ठीक है, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. यहाँ पे मैंने एक इंडेंटेशन लगाया. ओके, इट इज नॉट द स्ट्रेट लाइन, बट ओके फाइन. अब इसके अंदर मेरा कुछ टास्क है. आई विल राइट टास्क 1. okay, it has some task, or let's see, I will not write task because we are discussing nested if. So ये if है, इसके अंदर मैंने दूसरा if लिखा है. Okay, so inside this if I have another if, right? And inside again it has some conditions, right? Again this also has a condition, right? Okay, so again I will write hit colon. अब इसका इंडेंटेशन आएगा. अब इसका इंडेंटेशन स्टार्ट हो जाएगा, ये अंदर वाला ब्लॉक का. समझ में आ रहा है? अब इसके ऊपर भी एक आपके पास में, यहाँ पे भी एक इफ स्टेटमेंट है. समझ में आ रहा है? यहाँ पे भी आपकी एक इफ कंडीशन है. ओके, इसके अंदर भी कुछ कंडीशन है. फिर यहाँ पे ये कोलन होता है, और एंड सो ऑन. यू कैन क्रिएट एन नंबर ऑफ नेस्टेड स्ट्रक्चर एज लाइक दिस. ओके, अब ध्यान में देना, ये आपका जो अंदर वाला इफ है, ये वाला इफ, ये बाहर वाली इफ के ऊपर डिपेंड रहेगा कि ये एग्जीक्यूट होता है या नहीं होता. अगर ये मुझे बताओ, अगर ये कंडीशन पहले ही फॉल्स हो जाती है, फोकस करना है यहाँ पे, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो क्या कभी ये इस अंदर वाले इफ के अंदर आएगा या इफ के पास आएगा? यस गाइस, अगर बाहर वाला आपका इफ फॉल्स हो जाता है तो क्या वो अंदर आएगा? उसके नहीं आएगा. जब अंदर ही नहीं आएगा तो इस इफ कंडीशन को कभी वो रीच ही नहीं करेगा, कभी रीच ही नहीं कर पाएगा इसको. इट विल नॉट कम इनसाइड. समझ में आ रहा है गाइस? आर यू गेटिंग दिस? जो आपका स्टेटमेंट है ये कभी एग्जीक्यूट नहीं होगा, बिकॉज ये कभी अंदर उसको अलो ही नहीं करेगा. इट विल नॉट अलो टू कम इनसाइड. अगर इनसाइड ही नहीं आएगा तो इस इफ के पास में ये पहुंचेगा ही नहीं, और यहाँ पे पहुंचेगा ही नहीं तो इस कंडीशन को चेक कैसे करेगा? मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आपका अंदर का इफ जो है वो बाहर वाले स्टेटमेंट पे डिपेंड होता है. अगर बाहर वाला स्टेटमेंट अगर ट्रू हो जाता है तो अंदर आएगा, इट विल कम इनसाइड. अगर ट्रू हो जाता है, अगर आपका बाहर वाला स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो जाता है, अगर ये ट्रू होता है तो ये अंदर आएगा, इट विल कम इनसाइड. एंड अगेन चेक द कंडीशन ऑफ इनसाइड इफ. जो भी अंदर वाला इफ है इसकी कंडीशन चेक करेगा. अगर ये ट्रू होता है तो इसके अंदर आपने जो भी लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा. अगर नहीं ट्रू होता है तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा. बाहर अंदर वाला इफ जो है वो बाहर वाली इफ के ऊपर डिपेंड रहेगा. ये बात ध्यान में रखना. आपका अंदर वाला स्टेटमेंट वर्क होगा या नहीं, ये आपकी बाहर वाले स्टेटमेंट के ऊपर डिसाइड करेगा. जैसे हमारे पास एक बॉक्स होता है, सपोज वी हैव वन बॉक्स, राइट? अब मुझे बताओ यहाँ पे मेरे पास बॉक्स 1 है, सपोज दिस इज माय बॉक्स 1. ओके, एंड इसके अंदर मेरे पास बॉक्स 2 है. समझ में आ रहा है? तो अगर मुझे इस बॉक्स 2 तक पहुंचना है तो मुझे बॉक्स 1 को ओपन नहीं करना पड़ेगा. यस गाइस, आपको बॉक्स 1 के अंदर रीच करना पड़ेगा ना, बॉक्स 1 के अंदर एंटर करना पड़ेगा, तभी तो आप बॉक्स 2 के अंदर पहुंचोगे. समझ में आ रहा है गाइस? यस सर. एवरीवन, आपको बॉक्स 2 के पास में जाना है. अब बॉक्स 2 खुलेगा या नहीं? सपोज आपके दोनों बॉक्स में चाबी है, यू हैव सम ट्रेजर इनसाइड दिस बॉक्सेस. अगर आपको बॉक्स 2 के पास में रीच करना है, सबसे पहले आपको ये बॉक्स 1 को ओपन करना पड़ेगा. आपको इसको ओपन करना पड़ेगा. ओके, इसको ओपन करना पड़ेगा. आप ओपन करोगे तो ओपन करने के बाद आप बॉक्स 2 के पास पहुंचोगे. पहुंच गए. अब अगर आप बॉक्स 2 को ओपन नहीं, अगर आप बॉक्स 2 को ओपन कर पाओगे तो उसके अंदर का जो भी ट्रेजर है आप वो निकाल पाओगे. बट बॉक्स 2 को आप ओपन नहीं कर पा रहे. इसका मतलब क्या है कि बॉक्स 2 की जो कंडीशन है वो आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हो. अगर आप बॉक्स 2 को ओपन करना चाहते हो, उसके अंदर जो भी है वो एक्सेस करना चाहते हो, तो आपको बॉक्स 2 भी खोलना पड़ेगा. बट अगर आपका बॉक्स 1 ही ओपन नहीं हुआ तो आप बॉक्स 2 के अंदर नहीं जा सकते. वैसा ही होता है इफ एल्स इफ, सॉरी नेस्टेड इफ. एक स्टेटमेंट के अंदर दूसरा स्टेटमेंट होता है, तो बाहर वाला स्टेटमेंट अगर ट्रू होगा तो ही अंदर आएगा, नहीं तो वो अंदर नहीं आएगा.
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझना। ओके, तो इसको इसी सेम सिनेरियो के लेके हम एक एग्जांपल लेते हैं। विल टेक सम एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के जरिए इसको समझते हैं। एग्जांपल फॉर नेस्टेड इफ। ओके, एग्जांपल ऑफ नेस्टेड इफ। तो हम लेते हैं इफ यू वांटेड टू, हमने ये जो एग्जांपल है ये पहले भी ले चुके हैं। ओके, इफ समवन, ओके, इफ समवन want to take admission in engineering, अगर कोई है, someone want to take admission in engineering, उसको engineering के लिए admission जो है लेनी है। so there we have some person which is interested in taking admission in engineering, he or she want to take admission in engineering। yes guys, so if someone is wanted to take admission in engineering, what is the basic condition? क्या होती है एक बेसिक कंडीशन अगर किसी को भी एक पर्टिकुलर इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन लेना है? इफ अ पर्सन वांटेड टू टेक एडमिशन इन इंजीनियरिंग, व्हाट इज द कंडीशंस? क्या कंडीशंस होती है? यस, व्हाट विल द कंडीशंस? इसके लिए क्या कंडीशंस होती है? क्या कोई भी क्या कोई भी इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन ले सकता है? क्या कंडीशन होती है यहाँ पे? कंडीशन क्या होती है? इफ समवन वांटेड टू टेक एडमिशन इन इंजीनियरिंग, क्या कंडीशन होती है? यस गाइस, क्या कंडीशन होती है पता है? आपने किया है इंजीनियरिंग का 12 एडमिशन लिया है? 10 पास। सबसे पहले होता है 10th, राइट? वेरी गुड, सबसे पहले होता है 10th, राइट? उसके बाद में क्या है नेक्स्ट कंडीशन? 12 12th है, राइट? 10th और 12th साइंस। आपका होना चाहिए, राइट? अगर आपका 10th है, 12th है, उसके बाद में क्या मैं बोल सकता हूँ कि डिप्लोमा भी एक ऑप्शन है, कि डिप्लोमा होना चाहिए आपका, यस सर। राइट? entrance डिप्लोमा को हम exam क्या बोलते हैं? वी आर कॉल इट एज अ पॉलिटेक्निक, बराबर है? समझ में आ रहा है? तो आपकी तीन कंडीशन होती है, एक तो ये कंडीशन हो जाए, एक तो ये हो जाए, या फिर ये हो जाए। तीन कंडीशन है। अगर किसी ने 12th नहीं किया गाइस, अगर किसी ने 12th नहीं किया, 10th के बाद में डायरेक्टली डिप्लोमा कर लिया, तो वो भी चलता है। समझ में आया? समवन, किसी ने क्या किया, 10th के बाद 10th किया, 10th के बाद में उसने 12th भी किया, तो ये भी एलिजिबल है। किसी ने 10th किया, ओके, 10th के बाद में पॉली किया, तो ये भी जो है वो एलिजिबल है। समझ में आ रहा है गाइस? गाइस आर यू गेटिंग दिस? समझ में आ रहा है? तो हम क्या करते हैं, अगर कोई 12th किया हुआ है, ओके, 10th पहले चेक करेंगे, 10th अगर एचएससी क्लियर होगा उसके बाद में 10th देखेंगे। अगर किसी ने 12th से इंजीनियरिंग के लिए आया है, तो वी विल राइट हियर इंजीनियरिंग आफ्टर 12th। अगर कोई इंजीनियरिंग 12th से कर रहा है ज्वाइन, तो हम बोल देंगे इंजीनियरिंग आफ्टर 12th। अगर कोई पॉली से कर रहा है, अगेन जब पॉली भी चेक कर रहे हो, तो आप दोनों इधर सबसे पहले 10th चेक कर रहे हो, सबसे पहले 10th होना चाहिए। अगर नहीं 10th ही फेल है और आप 12th चेक कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है। इसलिए सबसे पहले आप यहाँ पे भी 10th चेक करोगे, सबसे पहले 10th चेक करोगे और पूछोगे क्या क्या 12th किया हुआ है? अच्छा, अगर ऐसा होता है तो इंजीनियरिंग आफ्टर 12th। अगर 10th के बाद में चेक कर रहे हो क्या पॉली किया हुआ है, तो अगर ऐसा होता है तो हम बोल देंगे इंजीनियरिंग आफ्टर डिप्लोमा। समझ में आ रहा है? यस गाइस, ये सिनेरियो समझ में आया आपको कि क्या हो रहा है? आर यू yes गेटिंग sir दिस सिनेरियो? समझ में यस आ रहा सर। है? तो यही करेंगे हम। बट अगर कोई ऐसा है जिसने 12th भी नहीं किया हुआ है, पॉली भी नहीं किया हुआ है, तो हम उसको बोलेंगे यू आर नॉट एलिजिबल। अगर ये दोनों कंडीशन, दोनों में से एक भी कोई, दोनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं कर पा रहा है कोई, कि उसने 10th के बाद 12th भी नहीं किया है, या फिर जो मैंने यहाँ पे मार्क कर रखा है, तो एक आपकी कंडीशन ये होगी, फर्स्ट कंडीशन ये होगी और सेकंड कंडीशन ये होगी। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन कोई ट्रू नहीं कर रहा है, तो सीधा बोल देंगे नॉट एलिजिबल फॉर इंजीनियरिंग। सो दैट इज व्हाट वी हैव टू डू। तो इसको फिगर में थोड़ा देखते हैं। सबसे पहले हमारे फिगर में क्या होगा, हमारा हो जाएगा 10th। यहाँ पे सबसे पहले हम 10th चेक करेंगे। 10th के बाद में दो ब्लॉक चेक करेंगे, कि 10th के बाद में क्या उसने 12th किया हुआ है, तो ये हो गया आपका 12th। ओके, क्या 10th के बाद में 12 किया हुआ है? बट 12 अगर नहीं किया होगा, तो चेक करेंगे क्या डिप्लोमा किया हुआ है। यहाँ पे चेक करेंगे क्या डिप्लोमा किया हुआ है। इफ द पर्सन विच इज अप्लाइंग, क्या 12th किया है? 12th नहीं किया तो पूछेंगे क्या डिप्लोमा किया है। अगर 12th किया होगा, अगर 12th किया होगा उसने, ओके गाइज, अगर इफ द पर्सन हैज डिड हिट्स 12, अगर 12th किया होगा तो हम बोल देंगे ये इंजीनियरिंग आफ्टर 12। अगर डिप्लोमा किया होगा तो हम ये बोल देंगे इंजीनियरिंग आफ्टर डिप्लोमा। ओके, बट अगर एक और ब्लॉक लिखेंगे यहाँ पे, कि अगर दोनों ही नहीं कर रखा है, 10th भी नहीं किया हुआ है, 12th भी नहीं किया हुआ है, तो यहाँ पे हम बोल देंगे नॉट एलिजिबल फॉर इंजीनियरिंग। हियर वी विल डायरेक्टली राइट नॉट एलिजिबल फॉर इंजीनियरिंग।
तो दिस इज द वेरी वेरी बेसिक एग्जांपल वी आर टेकिंग। ओके, तो हमारा सबसे पहले एक बाहर वाला इफ रहेगा, तो ये आपका हो गया इफ। उसके बाद में अंदर वाला भी एक इफ रहेगा, सो इट विल बी अगेन इफ। उसके बाद में ये एल्स इफ हो जाएगा, ये हो जाएगा एल इफ, और इसके बाद में ये हो जाएगा आपका एल्स। तो ये होता है आपका स्ट्रक्चर। सो हाउ इट विल बी लुक लाइक। तो सबसे पहले बाहर वाला इफ रहेगा, अंदर वाला, फिर अंदर एक इफ रहेगा, उसके बाद में एल्स इफ रहेगा, बिकॉज ये अगर फॉल्स होता है तो एल्स इफ में चेक करेगा, और अगर ये भी नहीं होता है तो आपका ये रहेगा एल्स। तो ये आपका होता है डायग्रामेटिकली कि किस तरह से ये दिखेगा। ओके, वेरी वेरी इजी। अब इसको कोड करके देखते हैं। वी आर ट्राइंग टू हैव सम कोड, कि इसको समझने के लिए हम कोड लिखते हैं। तो यहाँ पे हमें 3 वेरिएबल्स चाहिए। व्हाट आर द वेरिएबल्स वी नीडेड। हमें कितने वेरिएबल चाहिए, तो हमें कितने वेरिएबल चाहिए, वेरिएबल देख लेते हैं। सो वेरिएबल्स, ओके। तो वेरिएबल्स हमें 2 वेरिएबल्स लगेंगे, एक सॉरी 3 लगेंगे। एक तो लगेगा 12th, सॉरी 10th लगेगा, दूसरा लगेगा 12th, एंड तीसरा लगेगा पॉली। तो ये 3 वेरिएबल्स हमें चाहिए, 10th 12th एंड पॉली। तो हम चेक करेंगे क्या क्या 10th एंड 12 किया हुआ है। अगर ऐसा होगा तो इंजीनियरिंग आफ्टर 12। अगर 10th किया हुआ है और पॉली किया हुआ है तो इंजीनियरिंग आफ्टर डिप्लोमा। तो ये हमारा सिनारियो रहेगा, इस तरह से हम ये प्रॉब्लम जो है वो देखेंगे। तो यहाँ पे आते हैं, वी विल ओपन आवर एडिटर। ये बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ गाइस, मैं आपको बहुत बहुत धीरे बता रहा हूँ, ठीक है। आते हैं, सबसे पहले मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ। आई विल राइट माय वेरिएबल लाइक लेट्स टेक HSC। ओके, सो HSC आई विल राइट 89, इट इज अ मार्क्स वी आर टेकिंग। ओके, then I will write okay, then I will write तो ये हमारा हायर सेकेंडरी, लेट्स टेक, आई विल टेक okay 10th, let's take 10th. So I will write 10th is equal to SSC, HSC and HSC. Okay, I will write 89. Okay, अगर 10th क्या होगा तो 10th चेक करेंगे। Then we will write 12th. Okay, so 12th is equal to, let's take 80 or 96. Okay, we are just checking, I'm just taking random variables. Then we will write diploma. Okay, I will write diploma and I will write it 76. So this is how it look like. So सबसे पहले मैं if का ब्लॉक खोलता हूँ। I will write if. Okay, fine. So I will check if 10th is greater than equal to, now I am just taking the boundary marks कि जहाँ से वो जो पर्सन है वो 10th जो है पास कर पाएगा। तो मैं 50% लेता हूँ। अगर 50 या 50 से ऊपर होता है तो उसने 10th जो है पास किया हुआ है, ये मैं कंसिडर कर रहा हूँ। 50 या 50 से ऊपर होता है तो अगर 10th is greater than equal to 15, so I will write, I will not write anything, I will check another, I will write if, inside this again I will write another if. So I will write if उसके बाद में और क्वेश्चन पूछते हैं। अगर 12 greater than equal to, again let's take 50, if it is 50 hit colon again enter. So अगर 12th से, अगर उसने 12th किया हुआ है, अगर वो 12th में पास है, 12th किया और 12th में फेल है, तो वो मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ, आई विल प्रिंट इंजीनियरिंग, ओके, इंजीनियरिंग आफ्टर 12th। ओके, सो दिस इज वेरी वेरी बेसिक प्रोग्राम गाइस, इंजीनियरिंग आफ्टर 12th। बट अगर ऐसा नहीं होता है तो सी आई कम बैक टू द सेम पार्ट वेयर द दिस ब्लॉक इज स्टार्टिंग। यहाँ पे जो आपको ये छोटी सी लाइन दिख रही होगी, ये लाइन पे मैं रिटर्न आया हूँ। यहाँ पे आपको अगर देख पा रहे होगे तो आपको छोटी सी लाइन यहाँ पे दिखेगी। तो इसलिए जो नया ब्लॉक है, अब मैं वापस आता हूँ यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे एक छोटी सी लाइन दिख रही है जहाँ पे मैंने मार्क कर रखा हूँ, ये है लाइन। इसका लाइन ये मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो भी हम लिख रहे हैं ये आउटर इफ का पार्ट है। यहाँ पे दिख रहा है, ये जो आपको डिस्टेंस दिख रहा है, सपोज मैं बोलता हूँ ये x है। इसका मतलब ये है कि जो भी हम ये लिख रहे हैं ये आउटर इफ का पार्ट है। और यहाँ से जो ये आपको दिख रहा है, इसका मतलब है जो ये प्रिंट स्टेटमेंट है ये इस इफ का पार्ट है, इसलिए ये मैंने लिखा है, ठीक है। तो ओके, तो इसलिए मैंने ये लिख रखा है। आगे बढ़ते हैं, वी विल गो फॉर द नेक्स्ट। अगर ऐसा होता है, देखो मैं फिर से वो सेम लाइन पे आया, बिकॉज मुझे नई लाइन से स्टार्ट करना है फॉर दिस नेस्टेड स्ट्रक्चर। तो इसके बाद मैं लिखता हूँ एल्स इफ, आई विल लेट एलिफ and again I will check, I will let elif, and if the someone has did his diploma, अगर डिप्लोमा greater than equal to 50, again I am taking just scenario कि 50 या 50 से ऊपर होता है तो वो पास है। again I will hit enter, again you can see I have some distance from this line, it is called as indentation। I will let diploma किया हुआ है तो I will write same thing engineering after diploma, fine, ठीक है। बट अगर फिर से ऐसा नहीं होता, अगेन आई कम बैक टू द सेम लाइन, आई विल लेट एल्स, अगर दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू नहीं है, द पर्सन विल नॉट एलिजिबल। सो आई विल लेट प्रिंट
not eligible for engineering. Okay, same example, very easy example we have taken. इतना हार्ड नहीं है, बट ध्यान हमें ये रखना है इंडेंटेशन, वी हैव टू फोकस ऑन द इंडेंटेशन पार्ट. अब इसको डिस्कस करते हैं. मुझे बताइए, सबसे पहले मुझे बताओ, क्या ये कंडीशन ट्रू है? इज इट ट्रू गाइस? क्या 10th है, 10th क्या 10th ग्रेटर इक्वल टू 50 है? इज इट ट्रू और फॉल्स? ट्रू. ट्रू है एवरीवन गाइस? यस सर. यस, इट इज ट्रू. तो वो अंदर आएगा, ठीक है. अब वो अंदर वाले पार्ट के ऊपर आएगा. इट विल कम. सो लेट मी, आई विल जस्ट चेंज सम कलर. ओके, सो इट विल कम इन. जैसे ही ट्रू होता है तो अंदर आएगा. अंदर आया, इट हैज कम इनसाइड. अब अंदर आया, ठीक है. इस इफ ब्लॉक के पास में आया. अब अंदर वाली कंडीशन चेक करते हैं, ठीक है. आता है. एंड हियर जैसे ही ये इस स्टेटमेंट के पास आएगा, ओके, तो वो इस स्टेटमेंट के पास आया. मुझे बताओ, क्या ये कंडीशन ट्रू है? क्या 12th ग्रेटर देन इक्वल टू 15? यस सर. इट ट्रू, या इट इज ट्रू. जैसा ही ये ट्रू होता है तो अंदर आके क्या प्रिंट कर देगा? इंजीनियरिंग आफ्टर 12. समझ में आ रहा है कि बाहर वाला इफ ट्रू हुआ, अंदर आया. अंदर वाला इफ भी ट्रू हुआ तो हो गया 12th इंजीनियरिंग आफ्टर 12. आगे बढ़ते हैं. मैं करता हूँ, मैं ये जो कंडीशन है 12th वाले, ये मैं फॉल्स कर देता हूँ. ये बोलता हूँ ये 96 नहीं है, इसको है 35. ये मैंने चेंज कर दिया, 35 है. फिर से जाता है, फिर से डिस्कस करेंगे फ्रॉम स्क्रैच. हाँ, फिर से आता है, अगर इसको डिस्कस करते हैं फ्रॉम दिस स्क्रैच. फाइन. तो मुझे बताओ, क्या ये कंडीशन ट्रू है? क्या 10th इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50? इज इट ट्रू गाइस? क्या ये कंडीशन ट्रू है? ट्रू है. इट इज ट्रू, राइट. ये ट्रू है. जैसा ही ट्रू हुआ तो अंदर आया इस ब्लॉक के पास में. मुझे बताओ, क्या ये ट्रू है? क्या ट्रू है गाइस? क्या 12th ग्रेटर देन इक्वल टू 15? फॉल्स. ये हो गया फॉल्स. फॉल्स है. अब जैसा ये फॉल्स हो गया तो ये इसके अंदर जाएगा क्या? ये प्रिंट स्टेटमेंट कभी एग्जीक्यूट होगा? ये नहीं होगा एग्जीक्यूट, बिकॉज ये फॉल्स हो गया. अब ये फॉल्स होते सीधा किसके किसके पास में गया? ये जब फॉल्स होता ये गया एल्स इफ के पास में, बराबर. ये गया एल्स इफ के पास में. मुझे बताओ, क्या ये कंडीशन ट्रू है? यस सर. यस, ये हो गया ट्रू. ये आपका क्या हो गया? ट्रू हो गया. अब जैसा ही ये ट्रू हुआ तो वो उस ब्लॉक के अंदर आएगा. अब ये इसके अंदर है, वो क्या प्रिंट कर देगा? आफ्टर डिप्लोमा. समझ में आ रहा है गाइस एवरीवन? ये लाइन आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा. समझ में आ रहा है? यस एवरीवन, गाइस एंड गर्ल्स, आर यू गेटिंग दिस? समझ में आ रहा है ये? यस सर. अगेन वी विल गो फॉर द नेक्स्ट. अब मैं करता हूँ व्हाट आई विल डू. अब मैं ये भी जो 76 है इसको भी कर देता हूँ लेट्स टेक 30. मैं ये इसको कर दिया 30. अब फिर से ये सारी चीजों को देखते हैं और वर्क देखते हैं कि किस तरह से क्या हमारा कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होता है, फॉल्स होता है और क्या रिजल्ट आता है. ये जो चीज कर रहे हैं ना गाइस, ये जो मैं कर रहा हूँ इसको बोलते हैं ड्राई रन. ड्राई रन यानी कि लाइन बाय लाइन चीजों को, लाइन बाय लाइन हर एक लाइन पे जाना और देखना कि किस तरह से वर्कआउट होता है. सबसे पहले मुझे बताओ, क्या ये लाइन ट्रू है? क्या फर्स्ट इफ जो है वो ट्रू है? इज इट ट्रू गाइस? यस सर. पहला इफ ट्रू नहीं है, सॉरी ट्रू है, राइट. इट इज ट्रू. ट्रू है. सॉरी इट इज ट्रू. या ये हमारा हो गया ट्रू. अब जैसा ही ये ट्रू हुआ तो अंदर आएगा, राइट. मुझे बताओ, क्या ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है? ट्रू है? फॉल्स है. नहीं, ये फॉल्स है, राइट. अब जैसा ही फॉल्स हो तो ये दूसरे स्टेटमेंट के पास जाएगा. अब ये स्टेटमेंट के पास है, क्या ये ट्रू है? ये भी फॉल्स है, बराबर है. फॉल्स है. बराबर है. अब ये एल्स इफ के पास में, यहाँ इस इफ एल्स के पास में रहेगा. अब एल्स में कंडीशन चेक नहीं होता है. समझ में आ रहा है? एल्स में वो कंडीशन चेक नहीं करता है, डायरेक्टली जो भी आपने उसके अंदर लिखा होगा वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर देता है. एल्स में कंडीशन चेक नहीं होती है. जैसा ही एल्स इफ भी फॉल्स हो गया तो डायरेक्टली एल्स में गया और जो भी आपने लिखा होगा वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाएगा और यहाँ पे आपका आउटपुट आ जाएगा नॉट एलिजिबल फॉर इंजीनियरिंग. समझ में आ रहा है गाइस हाउ दिस नेस्टेड स्ट्रक्चर इज गोइंग टू वर्क आउट? समझ में आ रही है चीजें? यस, बताइए, समझ में आ रहा है क्या? यस सर. ओके Yes, sir. ओके. अब मैं ये जो 10th है, नहीं समझ में आ रहा होगा ना गाइस, प्लीज मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे सबसे, फ्रॉम ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, अगर नहीं समझ में आ रहा है प्लीज बताइए. आई डोंट वांट कि आपको नहीं समझाए फिर भी आप बस चुप रह रहे हो, ऐसा मत करना. अब मैं ये जो 89 है इसको भी कर देता हूँ 0. ये जो 89 है इसको मैंने कर दिया 0, ठीक है. अब मैं फर्स्ट कंडीशन पे आता हूँ 10th पे. क्या ये ट्रू है? फॉल्स है. फॉल्स है. अब False. जैसे ये फॉल्स हो जाएगा, ये अंदर वाले स्टेटमेंट के ऊपर आएगा ही नहीं, ये अंदर वाले स्टेटमेंट के ऊपर पहुंचेगा ही नहीं, बिकॉज बाहर वाला जो सिक्योरिटी गार्ड है उसे पहले ही रोक लिया.
10th क्लियर नहीं है तो आप मैं सामने वाला 12th वाला क्वेश्चन आपको कैसे पूछूं? वो तो अलग ही रहेगी बात कि आपने वो क्लियर किया है नहीं किया है, बट मैं सामने वाला क्वेश्चन कैसे पूछूं? सामने वाला जो आपने 12th किया है या डिप्लोमा किया है कैसे पूछूं? क्योंकि आपने तो 10th ही पास नहीं किया है या फिर 10th किया ही नहीं है। तो इस तरह से हमारा अंदर वाला स्टेटमेंट बाहर वाले स्टेटमेंट पे डिपेंड होता है। ये समझ में आ रहा है? यस गाइस। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो हमने व्हाट हाउ दिस गोइंग टू वर्क आउट, दिस इज हाउ इट लुक लाइक इन एक्चुअल। ओके, सो इस तरह से हमारा जो नेस्टेड इफ, सॉरी, हाँ, नेस्टेड इफ इज लुक लाइक, इट इज हाउ योर नेस्टेड इफ इज लुक लाइक। अब आगे बढ़ते हैं। सो हमारा लास्ट टॉपिक इन दिस कंडीशन स्टेटमेंट, आवर लास्ट टॉपिक in this conditioning statement will be our match case। ठीक है, तो जैसे ये मैच केस होता क्या है, जैसे हमने वी हैव सीन दिस राइट लाइक अ स्विच केस इन जावा, हमने स्विच केसेस जो है वर्कआउट की है, राइट? वी हैव सीन अ स्विच केस। अब ये मैच केस क्या होती है, व्हाट इज दिस मैच केस, यहाँ पे फोकस करना। तो लास्ट टॉपिक होता है हमारा इन कंडीशन स्टेटमेंट, कंडीशनिंग एंड डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट इज अ मैच केस। ओके, मैच केस जैसे हमारा स्विच केस होता है वैसा ही मैच केस होता है। ठीक है, जैसा हमारा स्विच केस होता है वैसे ही मैच केस होता है। एंड मैच केस होता है क्या है? इट इज एन अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव, ओके, इट इज एन अल्टरनेटिव वे, ओके, टू implement, okay, it is alternative way to implement if else if, and we know when we are going to use। मुझे बताइए आप if else if कब यूज करते हैं? आपके पास में आप कैसे कब डिसाइड करेंगे, कैसे डिसाइड करेंगे कि आप if else if जो है वो यूज करेंगे? हम if else if कब यूज करते हैं? यस गाइस, if else if कब यूज करते हैं बताइए फास्ट, कब यूज करते हैं? कंडीशन ट्रू या फॉल्स हुई तो कब करते हैं if else if? मल्टीपल कंडीशंस के लिए, राइट? इफ यू वांटेड टू चेक मल्टीपल कंडीशंस, समझ में आ रहा है? समझ में आ रही चीज है गाइस? जब भी हमें मल्टीपल कंडीशंस जो है वो चेक करना होता है तब हम इफ एल्स इफ यूज करते हैं, बराबर? समझ में आ रहा है? सिंगल कंडीशन, जब आपको सिंगल कंडीशन चेक करना है तो क्या आप वहां पे इफ एल्स इफ लगाते हो? क्या नहीं लगाते? बिकॉज No. आप वहां पे सिंगल ही कंडीशन चेक करते हो, ओनली वन कंडीशन। या फिर अगर आपको मोर देन वन कंडीशन जब चेक करना पड़ता है तब आप इफ एल्स इफ जो है वो यूज करते हो। सो मैच केस इज एन अल्टरनेटिव वे टू इम्प्लीमेंट इफ एल्स इफ। इतना समझ में आ रहा है? क्योंकि आपको इसके ऊपर असाइनमेंट्स जो है वो सबमिट करना है। आप मुझे बताइए, समझ में आ रहा है किस तरह से होता है ये मैच केस या फिर इफ एल्स इफ नेस्टेड? अभी तक जो हमने देखा है, वॉट एवर वी हैव डिस्कस्ड, अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया है? इफ, इफ एल्स इफ, नेस्टेड इफ। इससे पहले नेस्टेड इफ वाला स्ट्रक्चर देखा हमने यहाँ पे कि किस तरह से दिखता है। ओके, वी हैव सीन नेस्टेड इफ, देन वी हैव लास्ट अभी हमारा होता है स्विच, या सॉरी नॉट स्विच, मैच केस। समझ में आ रही है चीजें? यस गाइज, बताइए मुझे समझ में आ रहा है क्या एवरीवन? एंड मैच केस क्या होता है? Yes, sir. इट इज एन अल्टरनेटिव वे टू इम्प्लीमेंट इफ एल्स इफ। अगर आपको मल्टीपल कंडीशन चेक करना है तो हमारे पास एक मैच केस होता है, वी हैव अ मैच केस। और सिमिलर ही होता है, जैसे आपका इफ एल्स इफ होता है वैसा ही आपका मैच केस भी होता है। बट मैच केस इज मोर मोर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड है, बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से आपको दिखता है। ओके, मैच केस जो है आपका बहुत ही ऑर्गेनाइज होता है। ठीक है, तो मैच केस कैसे लिखते हैं? हाउ वी आर गोइंग टू राइट अ मैच केस? ओके, मैच केस जो है वो किस तरह से लिखते हैं, किस तरह से एग्जीक्यूट करते हैं? तो सबसे पहले हमने जैसे स्विच में लिखा होगा वैसे ही लिखते हैं। सबसे पहले हमें लिखना पड़ता है मैच। व्हाट वी हैव टू राइट हियर, आई विल राइट सिंटैक्स। ओके, सो किस तरह से लिखते हैं? सबसे पहले हमें लिखना पड़ता है मैच। ओके, और यहाँ पे हमें देना पड़ता है एक नंबर या फिर एक वेरिएबल। यहाँ पे लिखता हूं मैं मैच एन। ये एन क्या है? एन वो है जिससे आपको कंपेयर करना है। इट इज अ नंबर, ओके, इट इज अ नंबर टू विच यू वांटेड टू कंपेयर, जिससे आपको कंपेयर करना पड़ता है, जिससे आप कंपेयर करोगे। ये नंबर वो है जिस नंबर से आप कंपेयर करोगे। फोकस करना, इजी है वैसे, कोई हार्ड नहीं है। ये नंबर वो है जिससे आप कंपेयर करोगे ना, जिससे आप कंपेयर करोगे। यहाँ पे लगाना पड़ता है हमें कोलन। ओके, यहाँ पे लगाते कोलन, और इसके अंदर हम लिखते हैं केसेस। वी हैव अ केसेस हियर गाइस, वी डोंट हैव लाइक
इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0, नंबर इज ग्रेटर देन 1, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे हमारे पास होती है केसेस, वी हैव अ केस। अब इसको समझते हैं, यहाँ पे लिख के समझेंगे तो बहुत अच्छे से तो आपको समझ में आएगा, इसलिए मैं सारी चीजें यहाँ पे निकाल देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे हम लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आएगी। तो यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ। सबसे पहले हमें लिखना पड़ता है यहाँ पे मैच। 1 मिनट, 1 मिनट। ओके, तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ता है, सपोज आई विल टेक n, मैं एक नंबर लेता हूँ, नंबर इज इक्वल टू 1, n1 लिखा है। तो हमें करना क्या है, अगर नंबर इज इक्वल टू 1 लिखा है, सी हाँ गाइस व्हाट वी हैव टू डू, अगर मैं बोलता हूँ अगर मेरा नंबर इज इक्वल टू 1 है, हमारे पास 7 डेज होती है, एक वीक में 7 डेज होते हैं, राइट। तो मैं बोलता हूँ अगर मेरा नंबर 1 है तो मंडे है, अगर नंबर 2 है तो ट्यूसडे है, 3 है तो वेडनेसडे है, 4 है तो थर्सडे है, समझ में आ रहा है। इसी तरह से मुझे 7 डेज वो प्रिंट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं लिखता हूँ, यहाँ पे हमें लिखना पड़ता है मैच, और यहाँ पे लिखना है एन। एन वो है जिससे आपको कंपेयर करना है, जो कि एन मैंने ऊपर लिखा हुआ है, मैच लिखा एन, एन कोलन लगा के आई हैव हिट एंटर। सेम इसी में आपको इसके अंदर भी जो है वो आपको इंडेंटेशन देखने को मिलेगा, इंडेंटेशन ही होता है इसके अंदर। एन 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 वन लिखा, और यहाँ पे वो है जिससे मुझे कंपेयर करना है। बट मैं किसको कंपेयर करूंगा, तो जो ये एन है ये वो है जिससे आपको कंपेयर करना है, जिससे कंपेयर करना है। और मैं किसको कंपेयर करूंगा, मैंने बोला जिससे कंपेयर करूंगा, बट किसको कंपेयर करूंगा, तो यहाँ पे होती है केसेस। हाँ, हियर वी हैव अ केस, सो आई विल राइट केस 1, ठीक है, कोलन हिट एंटर। समझ में आ रहा है, फिर से मैंने यहाँ पे कोलन लगाया और हिट एंटर, और यहाँ पे मैं लगता हूँ अगर प्रिंट, अगर केस 1 मैच हो जाता है, यहाँ पे थोड़ा फोकस करना, हो सकता है कंफ्यूज हो रहा होगा, बट यहाँ पे समझो बहुत ईजी है। सो मैंने मैच एन लिखा, जिसको वो कंपेयर करेगा, और केसेस होती है यहाँ पे केस 1 2 3, आप कुछ केस वो होती है जिससे आपको एन से कंपेयर करोगे, जो एन और केस में मैच होती है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो एन लिखा है, ये एन और केस कंपेयर होगा, जो एन है और यहाँ पे जो केस होती है हमारे, जो भी केस होगी, ये दोनों कंपेयर होता है। और अगर एन इक्वल टू हमारा केस हो जाता है तो वो ट्रू हो जाएगा स्टेटमेंट। अगर नहीं होता इक्वल टू, अगर एन नॉट इक्वल टू, अगर इक्वल टू नहीं होता है हमारा, एन की वैल्यू अलग है, केस की वैल्यू अलग है, तो वो मैच नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखो, ये केस 1 है और एन यहाँ पे एन से कंपेयर कर रहे हैं, तो एन 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 भी 1 है हमारा और केस भी 1 है, तो केस और एन दोनों मैच हो रहे थे बिकॉज दोनों की वैल्यू 1 है। सो 1 इक्वल टू 1, ये दोनों ट्रू है, ये ट्रू होता है, इसलिए केस 1 मैच हो जाएगी। यही होता है हमारा इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ अगर अगर केस 1 मैच हो जाती है तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ मंडे। ओके, अगेन आई विल हिट एंटर, गो बैक टू द सेम लाइन जहां से ये ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है, जहां से केसेस स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पे लिखता हूँ अगर आई विल राइट अगेन केस 2, अगर केस 2 मैच होता है सो आई विल राइट प्रिंट ट्यूसडे। बहुत ईजी है, हाँ, ठीक है। अगेन ये मैंने सेकंड केस लिखा, आई विल हिट एंटर, अगेन कम बैक टू द सेम इंडेंटेशन, आई विल राइट केस 3, मैं लिखता हूँ केस 3, हिट एंटर। ओके, अब मैं सेम इसमें सेम इंडेंटेशन में वापस आता हूँ, केस 3 लिखता हूँ और हिट एंटर, जैसे केस 3 लिख के यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंटर, ठीक है। तो फिर से मैं लिखता हूँ यहाँ पे प्रिंट, आई विल राइट प्रिंट, ओके, यहाँ पे पैरेंथेसिस ओपन करते हैं एंड हियर आई विल राइट प्रिंट इन डबल कोट। अगर संडे, अगर डे, इसको थोड़ा मैं रीओपन करता हूँ क्योंकि एक मेरा शॉर्टकट जो प्रेस हो गया इसकी वजह से वो, ओके, so it will open, wait guys for a while. And in my machine so many things has been going on simultaneously, like I'm recording, I'm sharing, I'm like doing so many things at a time, so it will get sometime, it will its performance is not as we wanted, but it's fine, we have to manage. Okay, so या सो इट इज ओपन, लेट्स गो। बहुत इजी होता है, केस और आपका जो एन आपने दिया है वो मैच होगा, अगर दोनों की वैल्यू जो है वो सेम हो जाती है, अगर केस 1 है और एन भी 1 है
तो मैच हो गया, केस 2 है और NB2 है तो मैच हो गया, केस 3 है तो NB3 है अगर होता है तो मैच हो गया। तो इस तरह से एक स्विच केस जो है वो काम करता है। अब सारी चीज़ों को यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ फॉर द नीट एंड क्लीनलीनेस। सो विद दिस क्लीन हमारा जो कोड जो क्लीन होता है तो आप उसको और अच्छे से समझ पाते हो। तो यहाँ पे वापस आते हैं। ओके वी विल गो कम बैक हियर। सो अगर केस 3 होता है तो सबसे पहले हमने प्रिंट, अगर डे 1 होता है या फिर इसको एन ना लेके लेट्स टेक आई विल लेट डे नॉट एन, तो एन आपका एक जो है समझ में आएगा क्या होता है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डे। ओके तो अगर डे 1 होता है तो मैं प्रिंट कर देता हूँ डे और केस की मैच वैल्यू जो मैच हो जाती है। अगर डे और केस की वैल्यू मैच हो जाती है तो मैं प्रिंट कर देता हूँ मंडे। अगर डे और केस टू के मैच हो जाते हैं, अगर केस 2 है और डे 2 है तो मैच हो जाएगा तो ट्यूसडे प्रिंट कर देंगे। अगर केस 3 है और डे भी 3 है तो यहाँ पे प्रिंट कर देंगे थर्सडे। ओके वेरी वेरी सिंपल फाइन। अगर विल गो फॉर केस 4 सो आई विल राइट केस 4। अगर केस 4 मैच केस की वैल्यू 4 होती है और डे की वैल्यू 4 होती है तो ये 4 मैच हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा क्या आउटपुट आएगा, सो हियर वी हैव सबसे पहले संडे किया, फिर सॉरी मंडे किया, थर्सडे किया, राइट। When then we'll go for the Wednesday. So you can write some line of code like this. You can write Sunday, Monday, Tuesday. Okay, sorry we have here Wednesday, right? तो यहाँ पे Wednesday. Sorry guys. So here we have a Wednesday, then we have a Thursday, right? So हम multiple conditions जैसे लगा रहे हैं, जैसे हम if else में लगाते हैं, but it is a more organized, ये बहुत organized है। Okay, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, right? So I will write case 5 अगर case 5 होता है। Okay, so again I will hit enter, I will write print Friday, right? Again hit colon, again I will go for the same line जहाँ से cases start हो, again मैं लिखता हूँ case 6। अगर case 6 होता है Friday, then I will write print Saturday, right? And then again I will write, अब देखो जैसे हमारे पास if else if हम लगाते हैं if else if else if else if else if इस तरह से चलता है। तो हमारा एक एल्स स्टेटमेंट होता है जो कि लास्ट में होगा। अगर सारी चीजें ऊपर में से कोई भी लाइन ऑफ कोड ट्रू नहीं होता है तो एल्स में प्रिंट कर देते हैं। एल्स यानी अगर नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो, तो हमने सबसे पहले पॉजिटिव के लिए चेक किया, नेगेटिव के लिए चेक किया। तो अब जीरो है तो जीरो के लिए हमने चेक नहीं किया, बिकॉज ऊपर अगर पॉजिटिव भी नहीं होता है, जीरो नेगेटिव भी नहीं होता है तो जीरो ही होने वाला है, तो हमने उसके लिए कंडीशन नहीं लगाई। सेम वे अगर ऊपर 1 2 3 4 5 6 इनमें से एक भी डे नहीं है तो वो सैटरडे होने वाला, सॉरी संडे ही होने वाला है। तो संडे के लिए हमें एक केस लगाने की जरूरत नहीं है, हमारे पास एक डिफॉल्ट केस होती है। जैसे हमारे पास इफ एल्स इफ में एक एल्स कंडीशन होती है, वैसे ही मैच केस के लिए हमारे पास एक डिफॉल्ट कंडीशन होती है। डिफॉल्ट कंडीशन क्या होती है, अगर जितने केसेस दिए हुए हैं उसमें से एक भी केस मैच नहीं हुई है तो डिफॉल्ट कंडीशन जो है वो मैच हो जाएगी, या फिर डिफॉल्ट होता है ना, हमारा डिफॉल्ट सेटिंग होता है, तो डिफॉल्ट केस जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर ऊपर वाले कोई भी मैच केस, जो भी केसेस आपने दी है वो अगर मैच नहीं हुई विद द डे, ठीक है, तो हमारे डिफॉल्ट केस जो है वो वर्कआउट होगी। तो यहाँ पे केस डिफॉल्ट कैसे लिखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे लिखना है केस और यहाँ पे लगाना है अंडरस्कोर, सॉरी केस लगाना है स्पेस एंड अंडरस्कोर, ओके एंड कोलन, हिट एंटर। तो ये जो अंडरस्कोर लगाया है आपने, समझ में आ रहा है, केस अंडरस्कोर एंड कोलन हिट एंटर, तो ये होता है आपका डिफॉल्ट केस। इट इज कॉल्ड एज योर डिफॉल्ट केस। तो अगर ऊपर में से कोई भी नहीं होता है तो आई विल राइट संडे, ये संडे होने वाला, राइट। सो यहाँ पे मैंने लिखा संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। यहाँ पे कंफ्यूज अगर हो रहे होगे तो यहाँ पे देखना, ये जो डे है ना, ये डे, तो ये मैच केस करता क्या है, यहाँ पे जो वैल्यू दोगे इसको ये केसेस से मैच करेगा। मुझे बताओ, डे की वैल्यू और केस 1 की वैल्यू मैच हो रही है, बराबर, डे इज 1, राइट, डे की वैल्यू 1 है, राइट, डे की वैल्यू 1 है, और केस 1 की वैल्यू भी क्या है, केस की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 1 मैच हो गया। तो आपका कौन सा स्टेटमेंट मैच हो गया, केस 1 मैच हो गया। समझ में आ रही है बात गाइस, आर यू गेटिंग दिस, समझ में आ रहा है? यस सर। यस, तो केस 1 मैच होगा तो आपका आउटपुट क्या आ जाएगा, यू विल गेट मंडे। समझ में आ रहा है, केस भी 1 है और डे की वैल्यू भी 1 है, दोनों मैच हो गया तो आपका आ जाएगा मंडे। अब मैं डे की वैल्यू चेंज कर देता हूँ, आई विल राइट डे, तो डे का 1 से कर देता हूँ 2। बताओ ये क्या, ये केस ट्रू है गाइस, क्या फर्स्ट केस ट्रू है, क्या वाली केस मैच हो रही है डे से? नहीं। नहीं, इस केस में आएगा, ये यहाँ पे आता है, क्या ये मैच हो रहा है, सेकंड
यस सर। यस मैच हो गया, तो इसको तो आपका आ जाएगा थर्सडे, समझ में आ रहा है। फिर इसको 2 से मैं कर देता हूँ 3। अब यहाँ पे आएगा, ये मैच नहीं हुआ, ये भी मैच नहीं हुआ, फिर 3 पे आएगा, तो ये मैच हो गया बिकॉज इसकी वैल्यू भी 3 है और डे की वैल्यू भी 3 है, तो ये मैच हो गया। जैसा ही मैच हो गया तो आगे वेडनेसडे आ जाएगा, राइट। तो ये मैच हो गया, फिर से मैं 3 से इसकी वैल्यू कर देता हूँ 4, तो फिर से आता है। तो फर्स्ट केस के पास में आया, ये मैच नहीं हुआ, सेकंड के पास में ये भी मैच नहीं हुआ, थर्ड ये भी मैच नहीं हुआ, फोर्थ मैच हो गया, तो आपका आउटपुट आ गया थर्सडे, राइट। फिर से इसकी वैल्यू चेंज कर देते हैं, हम इसकी वैल्यू कर देते हैं चेंज 5। सो फर्स्ट मैच नहीं हुआ, सेकंड मैच नहीं हुआ, थर्ड मैच नहीं हुआ, फोर्थ भी मैच नहीं हुआ, फिफ्थ मैच हो गया, तो आपका आ गया यहाँ पे फ्राइडे। फिर हम इसकी वैल्यू 5 से कर लेते हैं 6, तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कोई भी मैच नहीं हो रहा है, फिफ्थ भी मैच नहीं हो रहा है, 6 पे आएगा, 6 पे ट्रू हो जाएगा, यहाँ पे सैटरडे प्रिंट हो जाएगा, आपका आउटपुट आ जाएगा सैटरडे। अब 6 से मैं कर देता हूँ इसको 7 कर लेते हैं, तो ऊपर वाले सारे के सारे केस सारे की सारी फॉल्स होगी। जैसे हमारा एल्स काम करता है ना, वैसे ही ये जो है वो सिचुएशन मैच करते हैं डिफॉल्ट, ये होता है आपका डिफॉल्ट केस। ऊपर वाले जब सारे ही फॉल्स हो गए तो लास्ट में वो डायरेक्टली प्रिंट कर देगा संडे। तो संडे के लिए हमें केस 7 लगाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अगर अगर डे 1 2 3 4 5 6 में से एक भी नहीं है तो 7 ही होने वाला है, और उसके लिए हमने डिफॉल्ट केस लगाई है जो कि काम करता है एज ऑफ योर एल्स कंडीशन। सो आपको जो है वो बहुत ही ऑर्गेनाइज दिखता है। जो स्विच केस है ना, बहुत ही ऑर्गेनाइज होता है। देखो कितना ऑर्गेनाइज दिख रहा है, रीड करना भी बहुत ठीक लग रहा है। एंड यू कैन सी डिफरेंस बिटवीन इफ एल्स इफ एंड योर स्विच केस, वेरी वेरी ऑर्गेनाइज। आपका स्विच इफ एल्स इफ कंडीशन है, ये जो है बहुत ऑर्गेनाइज दिखता है। सो इट इज हाउ योर स्विच केसेस लुक लाइक। समझ में आ रही है गाइज? समझ में आ रहा है किस तरह से हम जो है कंडीशनल स्टेटमेंट्स को वर्कआउट करते हैं? बताइए, डू यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स यार कि हम कैसे लिखते हैं? यस गाइज, एनी प्रॉब्लम डू यू हैव? यस एवरीवन, कुछ प्रॉब्लम है स्विच केस या फिर मैच केस कैसे लिखते हैं? यस गाइज, एवरीवन ऑफ यू डू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, यू कैन आस्क। बताइए कुछ प्रॉब्लम है? नहीं समझा तो पूछो प्लीज, नहीं समझ रहा होगा तो पूछो, आई एम रिक्वेस्टिंग यू। नहीं समझ में आ रहा है क्या? विनाया, शांतनु, साक्षी, रसिका, प्रचिति, पायल, कुणाल, खुशी, हिमांशु, गोपाल, दिव्या, आकांक्षा, यस, तन्मय, समझ में आया कि हम इफ एल्स इफ नेस्टेड इफ मैच किस तरह से करते हैं? यस शांतनु, यस सर। विनाया, रसिका, सर। प्रचिति, 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 पायल, रसिका, समझ में आया? यस सर। यस खाली सर। यस बोलने से काम नहीं चलेगा, समझ में आ रहा है? खाली यस बोलने से काम नहीं होगा। आपको अगर नहीं समझा होगा तो पूछो, क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन जो है फॉरवर्ड कर रहा हूँ व्हाट्सएप के ऊपर, ग्रुप के ऊपर, विच यू हैव टू सॉल्व। और लास्ट टाइम मैंने जो असाइनमेंट नंबर 1 दिया है उसके भी क्वेश्चन अभी तक मेरे पास आए नहीं है, ये ध्यान में रखना। भेजे सर। भेजे हैं, जिन्होंने नहीं भेजे उनकी बात कर रहा हूँ। ऐसा मत करना कि आपको लग रहा होगा कि बहुत ढीला इन्वायरमेंट है, हम नहीं किया तो भी चलेगा। समझ में आ रही है बात गाइज? आपको क्वेश्चंस जो है वो डेली प्रैक्टिस करना है, एंड आपका ही उसमें बेनिफिट है। आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ही और चीजें बेहतर तरीके से समझ में आएगी। समझ में आ रहा है? तो आपको कल शाम के सेशन तक आपको असाइनमेंट नंबर 1 और अभी जो मैंने भेजी है वो दोनों असाइनमेंट आपको सॉल्व करना है। और द असाइनमेंट विच आई हैव गिवन यू, इट इज द बेस ऑन द कंडीशनिंग स्टेटमेंट एंड द वेरिएबल, जैसे वेरिएबल बनाते हैं, कैसे प्रिंट करते हैं, कैसे एवरेज निकालते हैं, बेसिक बेसिक चीजें ही है उसके अंदर, इतने कुछ हार्ड प्रोग्राम नहीं है। समझ में आ रही है बात? तो आपको 2 असाइनमेंट कल तो संडे है, आराम से कर पाओगे, और इतने हार्ड क्वेश्चन वैसे है नहीं वो, क्योंकि हमने जावा में वर्कआउट किया, तो सेम ही क्वेश्चन हमें इसमें करना है, बस लिखने का तरीका अलग हो जाएगा। इंडेंटेशन जो है वो इंडेंटेशन ध्यान में रखना, ठीक है? सो यहाँ पे हम रुकते हैं गाइज। सो टुडे वी विल स्टॉप हियर, सो वी विल कंटिन्यू फ्रॉम मंडे। सो